See, last lecture में we discussed that if I change flux, okay, flux change can lead to EMF induction, right? Which leads to current. And EMF induced का formula we had got as d phi by dt. Rate of change of flux will give you induced EMF, and that happens in opposite direction, isn't it? EMF is induced in such a way that it opposes the cause of change of flux. Okay, if you know EMF, we could find current as EMF upon resistance, right? And we also found charge flow का formula as minus delta phi upon r, isn't it? इस फॉर्मूला में लिखा था लास्ट टाइम, है ना? तो ये फॉर्मूला तो हमारा हो गया. तो एक तरीका है EMF लाने का, you change the flux, isn't it? Okay, there is one more way of EMF induction which is based on motion of a conductor in a field. That part we'll do now. Okay, देखो हम क्या कर रहे हैं. Let's say if I take a rod, there is a similar concept which is called as Hall's voltage. उसका application थोड़ा अलग है. We'll discuss that also later. Okay, so let's say there's a rod which is moving with some velocity v in external field B. समझ लो यहाँ पे कोई field line है B. Now you should notice that the rod is moving in such a way that it is cutting the field lines. देखो field lines को cut कर रहा है. मैं field को B बोल रहा हूँ यहाँ पर. तो ये rod को जानबूझ के मैं थोड़ा मोटा बनाया so that I want to show the motion of charges here. Okay, so rod is moving in such a way that it's cutting the field lines. Field lines are going inside the page. और ये rod जो है cut कर रहा है. समझा क्या? rod को cut करते हुए जा रहा है. ठीक है, ये ध्यान देना है तुमको. तो rod का नाम ले लो AB. Is some AB rod, field let's say some B naught. ठीक है, okay. Now, if I take any charge inside the conductor, let's say I'm taking a positive ion, मैं charge E लिख रहा हूँ, या तुमको Q लिखना तो Q लिख सकते हो. You want to write charge Q. If I take any positive ion, because उस पे direction दिखाना आसान है, I'll take a positive ion, let's say charge Q plus Q. So if the conductor is moving with velocity v, the charge is also moving with velocity v. If you have moving charge in magnetic field, what will happen? Force exerted, right? Okay, what is the force exerted here? Okay, FB will be equal to Q into V cross B, isn't it? Okay, and that will be QVB sin 90. In this case sin 90 है ना, because velocity and field are perpendicular. ठीक है, B naught लिख सकते हो, लिखना है तो यहाँ पर, है ना? तो ये तुम्हारा FB जो मिलेगा वो मिलेगा QV B naught. This is the amount of magnetic force experience. कौन से डायरेक्शन में? V cross B upwards. ठीक है, तो ऐसा कुछ फोर्स लगना चाहिए, ऐसा कुछ. अब ये फोर्स कैसे क्या होने वाला है? ये जो फोर्स कैसे क्या, चार्जेस विल गो अपवर्ड्स, isn't it, in the conductor. चार्ज थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा. ओके, पॉजिटिव चार्ज ऊपर जाएगा तो नेगेटिव चार्ज थोड़ा नीचे आएगा, isn't it? ठीक है, so that means this rod में थोड़ा चार्ज सेग्रीगेशन दिखने लगेगा तुमको, राइट? कि यहाँ पे यू हैव सम पॉजिटिव चार्जेस एंड यहाँ पे यू हैव सम नेगेटिव चार्जेस. डू यू एग्री? Isn't it? Okay, and because of this charge segregation, what will happen? Higher potential one side, lower potential one side, you have a potential difference created. ठीक है, okay. So I can say that कि charges will segregate and hence charges will segregate and hence potential difference V, capital V is developed या is induced we can say, है ना, जिसको हम induced voltage बोल सकते हैं. समझ में आया क्या? ओके, एंड बिकॉज ऑफ दिस induced voltage we have electric field created, isn't it? How is the electric field? It will be like this, higher से lower potential, है ना? This is electric field created. अब because of electric field what do you have? You have electric force. समझ में आया क्या? On this charge एक और force आ जाएगा which will be electric force. Fe will be equal to what? QE, isn't it? Okay, the value will be Fe का Q into E only. Okay, and that direction will be in which direction? Downwards, like this. तो चार्ज के ऊपर एक और फोर्स लग रहा है, ठीक है? Okay, Fe downwards. Do you agree? है ना? And charges will move and they will come into equilibrium when? When Fe equal to Fe is equal to FB हो जाएगा, ठीक है? तो ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, which is QE should be equal to what? QV B naught. सही है? And you know from electrostatics कि E को can we write potential difference upon length, लिख सकते हैं, है कि नहीं? ठीक है, इसको V लिखो या डेल्टा V लिखो, जो भी तुमको अच्छा लगे. डेल्टा V भी लिख सकते हो if you want to. ठीक है, ओके, डेल्टा V अपॉन potential difference between the 2 points A and B. ओके,
तो क्या मिलेगा देखो, इट विल बी क्यू वी बी नॉट, क्यू क्यू कैंसिल, डेल्टा वी का वैल्यू क्या मिल रहा है, डेल्टा वी का वैल्यू क्या मिल रहा है, बी एल वी को मैंने वी लिया, ठीक है, दैट्स द फॉर्मूला। समझ में आया क्या? दैट्स द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द रॉड्स। तो व्हाट आई कैन से कि इवन इफ द रॉड इज मूविंग सच अ वे दैट कि रॉड का लेंथ is cutting the field lines, I observe that potential difference is developed within the ends of the rod, and the value of that potential difference या induced EMF भी बोल सकते हैं उसको, is equal to what, B naught LV या BLV बोलो उसको। B क्या है, magnetic field, L क्या है, length of the conductor, V क्या है, velocity। Any questions here? सबको समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, थोड़ा और समझते हैं इसको, ठीक है। What you should understand कि this formula is applicable only when all three are perpendicular to each other, BLV। बट जनरल केस क्या होगा इसका, इफ यू वांट टू राइट इन जनरल, इन जनरल आई कैन से दैट मैंने क्या किया था, Fe इक्वल टू Fb किया था इक्विलिब्रियम के लिए, है ना। तो Fe मतलब क्या है, इट इज Q वेक्टर E, और Fb क्या है, इट्स Q इनटू V क्रॉस B, इजंट इट, है ना। Q कैंसिल, यू गेट इलेक्ट्रिक फील्ड एज V क्रॉस E। व्हाट इज V हियर, वेलोसिटी, एंड B इज मैग्नेटिक फील्ड। आल्सो वी नो दैट डेल्टा V potential difference is equal to minus E vector dot L vector, है ना। क्यों इलेक्ट्रो में क्या होता है, डेल्टा ये वाला, हाँ, डेल्टा V is my integration of E dot dx, ऐसा कुछ पढ़ा, D dot dl ऐसा कुछ पढ़ा था हमने, राइट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो वी कैन ऑलवेज टेक E आउटसाइड, तो वी गेट दैट फ्रॉम, वहां से ये निकाल रहे हैं हम, ओके। सब्स्टिट्यूट करो तो क्या मिल रहा है, जो डेल्टा V का वैल्यू एक्चुअली मिल रहा है इन जनरल, इट्स माइनस E which is V cross B, isn't it, which is V cross B, right, which is V cross B dot L. What do you call this? This is called as scalar triple product, isn't it? है ना, वेक्टर्स पढ़ाया तुमको मैथ्स में, राइट। इसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, बिकॉज इट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ थ्री क्वांटिटीज, राइट। तो ट्रिपल प्रोडक्ट है VBL, है ना। बट आंसर क्या आएगा इसका, स्केलर आएगा, बिकॉज V क्रॉस B विल बी वेक्टर एंड वेक्टर डॉट ये L क्या आने वाला है, स्केलर। समझ में आ रहा है? ऑल्सो यू मस्ट अंडरस्टैंड, अभी ये फॉर्मूला से क्या क्या समझ में आ रहा है, ठीक है। पहला चीज कि इफ एनी वन ऑफ देम इज पैरेलल, V, B या L, इसमें से कोई भी पैरेलल निकला, ठीक है, एनी वन इज पैरेलल, तो आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है, डेल्टा V विल बिकम 0, ठीक है। ये पहला कंक्लूजन है। दूसरा कंक्लूजन क्या मिल रहा है मुझे कि L जो है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, जैसे BLV वाला, सॉरी BIL वाला, है ना। F इक्वल टू BIL में L क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वही सेम यहां भी चलेगा, ठीक है। तो L इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बिटवीन टू एंड्स, isn't it, okay। और थर्ड चीज दैट यू शुड नो, इफ यू वांट टू नो व्हिच इज हायर पोटेंशियल व्हिच इज लोअर पोटेंशियल, तो व्हाट वी डू इज वी लुक एट द डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B। V क्रॉस B जहां पे होगा, जहां थंब पॉइंट कर रहा है, ठीक है, V क्रॉस B किया मैंने, तो वो एंड हायर पोटेंशियल है। तो हायर पोटेंशियल चाहिए तुमको, ठीक है। सो फॉर हायर पोटेंशियल एंड, बिकॉज फॉर्मूला तो पता ही है, ठीक है, फॉर हायर पोटेंशियल एंड लुक एट डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B का डायरेक्शन देख लो। समझ में आया क्या, ठीक है। ये कुछ कुछ चीजें हमको पता होना चाहिए, समझा कि BLV में से अगर तीनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे को, तो दिस फॉर्मूला इज ऑलवेज परफेक्ट, है ना। ऑल थ्री परपेंडिकुलर, आंसर इज BLV, ओके। नहीं है तो यू कैन ऑलवेज लुक एट दिस फॉर्मूला V क्रॉस B डॉट L, समझा। और हायर पोटेंशियल चाहिए तो V क्रॉस B का डायरेक्शन देख लो। L क्या है तुम्हारा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इज इट मेकिंग सेंस, एनी वन ऑफ देम इज पैरेलल, व्हाट विल हैपन, डेल्टा V विल बी 0, इज मेकिंग सेंस। समझ में आया क्या, ओके। समझ में आया सारा पॉइंट्स, एनी क्वेश्चंस, एनीवन, पक्का। अब क्वेश्चन देखो, हियर इज द क्वेश्चन, यहाँ पे दिया है एक रॉड AB है, लेंथ इसका ले लो L, ओके। मैग्नेटिक फील्ड B नॉट कमिंग आउट ऑफ द पेज, they are asking me to find the potential difference between A and B, capital B है। फर्स्ट ऑफ ऑल हायर पोटेंशियल कौन सा होगा, V क्रॉस B करो, V क्रॉस B, V क्रॉस B, हायर पोटेंशियल B है, तो वी फिर दैट कि B इज एट हायर पोटेंशियल। समझ में आया क्या, कैसे मालूम पड़ा, V क्रॉस B किया, ठीक है, V क्रॉस B, समझ में आया क्या। एंड देन
यू वांट द वैल्यू राइट. तो यहाँ पे देखो L और V परपेंडिकुलर नहीं है, तो आई ट्राई टू यूज द जनरल फॉर्मूला डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस V क्रॉस. अच्छी वैल्यू चाहिए, नेगेटिव साइन का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज आई ऑलरेडी नो विच इज हायर पोटेंशियल राइट. तो नहीं लिखा तो चल जाएगा, ठीक है, तुम्हारी मर्जी. मतलब V क्रॉस B डॉट L है ना. V क्रॉस B किस तरफ आएगा? V क्रॉस B, V क्रॉस B, V क्रॉस B, V क्रॉस B is here. V cross B is here, right? This is V cross B, right? And the value कितना है इसका? वैल्यू क्या है? VB sin 90, right? तो VB, ठीक है, V naught जो लिया हमने, ठीक है, तो इसका वैल्यू V naught है. ओके, अब ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर, द ब्लू वेक्टर, उसका डॉट L से लेना है. तो देखो यू अंडरस्टैंड दिस बाय L. अभी समझ में आया क्या? अभी तो ये एंगल लेना है कि ये एंगल, तेरे ऊपर है. बिकॉज देख नेगेटिव, जहां सा नेगेटिव साइन ही आने वाला है. इफ यू टेक ऑब्ट्यूज एंगल यू गेट नेगेटिव साइन, इफ यू एक्यूट एंगल यू गेट पॉजिटिव साइन. देखो साइन, अपने साइन तो हमने ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ कर लिया है. द मोमेंट वी नो B इज एट हायर पोटेंशियल, साइन इज टेकन केयर ऑफ. तो इजी कर लो, मतलब इंस्टेड ऑफ टेकिंग ऑब्ट्यूज एंगल एक एक्यूट एंगल, मतलब ठीक है. तो ये एंगल कितना होगा? 37. तो आई विल डू B naught डॉट L. तो इट विल बी A, दिस इज A, B cos थीटा. अरे डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, A B cos थीटा. समझ में आया क्या? तो A B cos 37, right? Cos 37 how much? 4/5. That's your answer. And I'll write इसको VB minus VA. चमका? कैसे किया मैंने? देख लो एक बार, कुछ पूछना तो पूछो. कैसे किया वापस बता रहा हूँ. देखो यहाँ पे तीनों परपेंडिकुलर है क्या? VB और L नहीं है ना, तो हमने जनरल फॉर्मूला यूज कर लिया. व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला? V क्रॉस B डॉट L, ठीक है. उसके पहले मैंने साइन भी देख लिया कि कौन हायर पोटेंशियल है. कैसे निकाला? V क्रॉस B किया, देखा ये वाला हायर पोटेंशियल है, तो इसलिए VB माइनस VA लिखेंगे. समझ में आया क्या? फिर क्या बोला कि V क्रॉस B करते हैं. ओके, तो V यहाँ पे है, B पेज के बाहर, तो V क्रॉस B इस तरफ मिल रहा है मुझे. वैल्यू कितना है उसका? V naught sin 90 विच इज 1. ओके, तो ये मिल गया एक वेक्टर. सेकेंड वेक्टर L वेक्टर है अपना, तो ये और ये L वेक्टर के साथ हमने, दिस इज द L वेक्टर एंड दिस इज V naught वेक्टर. ये दोनों के बीच में हमने क्या कर लिया? डॉट निकाल लिया. डॉट कैसे मिलेगा? A B cos 37 which is the value. किसका? V cross B, finger towards B, curl towards B, है ना. V cross B से finger towards B, curl B is out of the page. समझ में आया ना? पक्का समझ में आया सबको? Any questions anyone? समझ में आया ये? नेक्स्ट करो चलो. Try this. This is a ring of radius R, half ring, radius R दिया है. Okay, and it's going upwards as shown in the figure with velocity V naught. और फील्ड B naught है, कट कर रहा है फील्ड लाइंस को, तो EMF इंड्यूस होना चाहिए. Give me the answer. V cross B dot L. V naught. Find potential difference between A and B. That's the question. AB is a half ring traveling velocity V naught in field B naught as shown in the figure. Give me potential difference between them. See, one way of doing this problem is कि we can say कि ये थीटा पे जाके, यहाँ पे जाके, थीटा पे जाके एक छोटा पार्ट ले लो डी थीटा वाला, इसका लेंथ ले लो DL, है ना. ठीक है, DL वेक्टर ले लिया इसको. अब बोलोगे कि जो D इसमें आएगा that will be equal to what? It will be V क्रॉस B डॉट DL, है कि नहीं? है ना. मुझे हायर पोटेंशियल तो पहले से ही पता है, क्या है वो? V क्रॉस B, A इज द हायर पोटेंशियल, ये तो हमको पहले से पता है. ओके, D पता है, DV लिख लो इसको. जो D नहीं लिखा तो DV लिख लो, जैसे हम वोल्टेज बोल रहे थे ना, DV. ओके, नाउ इफ आई वांट टोटल वोल्टेज आई हैव टू इंटीग्रेट दिस DV एंड दैट विल बी, यू शुड अंडरस्टैंड कि V क्रॉस B चेंज हो रहा है क्या? नहीं चेंज हो रहा है V क्रॉस B, बिकॉज V वेक्टर भी कांस्टेंट है, B वेक्टर भी कांस्टेंट है. तो V क्रॉस B का वैल्यू तो हर एक के लिए सेम है. एवरी DL एलिमेंट के लिए इट विल बी सेम. तो आई कैन से दैट कि V क्रॉस B कैन बी टेकन आउट एंड डॉट आई गेट इंटीग्रेशन ऑफ DL वेक्टर. तो ये सारे DL वेक्टर को ऐड करेंगे ऐसे, DL वेक्टर तो यू अंडरस्टैंड ना, ये लूप में जो है ऑल आर वेक्टर्स, ठीक है, सब वेक्टर्स ही है, isn't it? And then you know polygon law of vector, तो resultant will be this missing side,
दैट विल बी व्हाट 2r। तो बोल सकते हैं फॉर्मूला क्या आएगा इसका डेल्टा वी का, सॉरी डेल्टा वी, इट विल बी सिंपली v नॉट b नॉट है ना 2r, विच इज एक्चुअली va माइनस vb। इसलिए कन्वीनियंटली हम क्या करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट से रिप्लेस कर देते हैं उसको। समझ में आया क्या? अगर वी और बी मोस्टली कांस्टेंट ही रहेगा। समझ में आएगा? नहीं कांस्टेंट है तो देन वी हैव टू गो बाय दिस मेथड, स्मॉल एलिमेंट लेके फिर सॉल्व करते हैं बेटो। समझ में आया? डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो ए बी वेक्टर तो ऐसा है ना, तो cos 180 नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, मैं वही बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे हायर पोटेंशियल पहले ही पता है, तो इसलिए मैंने साइन वाइन तो देखा ही नहीं। तो तुझे ऐसे ले ले या वैसे, जैसे यहाँ पे किया था हमने, देखो ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐसे और ऐसे लिया है ना, दिस वी क्रॉस बी, आई कुड हैव टेकन लाइक दिस आल्सो, मेरे कन्वीनियंस के हिसाब से, राइट। ये वी क्रॉस बी मेरा यहाँ पे था, अब मैंने एल वेक्टर यहाँ पे ले लिया, ऐसे लेता तो एंगल 180, एंगल ज्यादा हो जाता, मतलब ऑब्ट्यूज आता, तो आंसर नेगेटिव आता। नेगेटिव पॉजिटिव आई एम नॉट लुकिंग बिकॉज आई ऑलरेडी नो व्हाट इज माय हायर पोटेंशियल, ठीक है, तो आई एम जस्ट सेविंग माय कैलकुलेशन। समझ में आया क्या? तो वो एल तुमको जहां लेना है वहां ले लो, कोई फर्क नहीं, ऐसे ले लो या ऐसे इस तरफ लो या इस तरफ लो, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, बिकॉज हायर पोटेंशियल पहले ही अपन ने अकाउंट कर लिया है। तो वी आर जस्ट यूजिंग द फॉर्मूला टू गेट द वैल्यू और मैग्नीट्यूड। समझ में आया क्या? एनी क्वेश्चंस? ठीक है, अगर ये समझ में आ गया है तो लुक एट दिस वन मोर। बोला एक रैंडम शेप वायर है, ठीक है, ए बी, उसको ऐसे वी नॉट से ऊपर लेके जा रहे हैं। बोला लेंथ अगर मैं डिस्प्लेसमेंट बनाऊं दैट इज 10 मीटर्स, दे के रखा है। ये ए बी जो है ये वैल्यू दिया है अपने को, दिस वैल्यू इज गिवन है सम 10 मीटर्स, ये 10 मीटर है और ये एंगल 37 है हॉरिजॉन्टल से। दिस इफ आई जस्ट जॉइन ए बी दैट मेक्स एन एंगल 37 विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। Magnetic field is coming out of the page, it is B naught. Wire is moving with velocity V naught as shown in the figure. Can you give me the potential difference across AB? 8 V naught 8 V naught 8 मिनट में आ रहा है। क्वेश्चन समझ में आया क्या? ये ऐसा वायर है, ऐसे ऊपर जा रहा है वेलोसिटी V naught से, फील्ड को काटते हुए, फील्ड का वैल्यू V naught है। ओके, बोला है कि ये जो लेंथ है ए बी, ये दिया है आपको 10, और एक और इंफॉर्मेशन दिया है कि ये जो एंगल है हॉरिजॉन्टल से वो 37 है। यू हैव टू फाइंड ये दोनों एंड से पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ रहा है, करो। 8 V naught 8 V naught So see the logic would be, so we already know the displacement vector is 10 sorry, है ना, L तो पता है 10 है, L पता है 10 है, राइट। B को B नॉट दिया है अपने को, ठीक है, V को V नॉट दिया हुआ है अपने को। ओके, पहले क्या करना पड़ेगा अपने को, V क्रॉस B करना पड़ेगा, राइट। तो V क्रॉस B इज V क्रॉस B, है ना, ठीक है, तो दिस इज V क्रॉस B, दिस इज V नॉट, दिस इज सॉरी पेज के बाहर आ रहा है अपना B नॉट, ठीक है। तो V क्रॉस B करोगे, V क्रॉस B तो इस तरफ आएगा, दिस इज योर, वैल्यू कितना है इसका, V नॉट B नॉट ही आएगा ना, साइन 91। एंड L वेक्टर जो तुम्हारा L वेक्टर है लेंथ, वो ऐसा है, करेक्ट, एट 37 डिग्रीज। इसका वैल्यू कितना दिया आपने, 10, ठीक है, 10 मीटर्स। तो अब क्या करना है, अभी डॉट लेना है इनका, तो डेल्टा V विल बी इक्वल टू V नॉट B नॉट इंटू 10, ठीक है, और एंगल बिटवीन देम इज cos 37, आया कितना, 8 V नॉट B नॉट। हायर पोटेंशियल कौन था इसमें, तो यू कैन राइट इसको VB माइनस VA, दैट्स द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, यहां बताओ, देयर इज अ लूप which is in a constant magnetic field B naught। तुमको पता है कि फ्लक्स चेंज हो रहा है क्या इसके थ्रू, फ्लक्स चेंज हो रहा है क्या इसके थ्रू, तो इसमें EMF इंड्यूस हुआ क्या, दैट तो वी नो बाय फ्रॉम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स वाले फंडे से पता है कि इस लूप में कोई EMF इंड्यूस नहीं हो रहा है, क्योंकि क्या बोलते हैं, फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है इसका। दिस इज अनदर वे ऑफ लुकिंग एट इट। ओके, सी यू अंडरस्टैंड, लुक एट योर साइड AB एंड साइड BC, बिकॉज ये दोनों ही तो तुम्हारे फील्ड लाइन को कट कर रहे हैं, है कि नहीं। ओके, अब AB में जो पोटेंशियल डेवलप होगा, ओके, इट विल बी BLV,
लेट्स से इट्स अ स्क्वायर लूप, ठीक है, तो BLV होगा बिकॉज L, V और B परपेंडिकुलर है, बराबर। और BLV में भी हायर पोटेंशियल कौन सा होगा, क्या होगा हायर पोटेंशियल, V क्रॉस B, B इज हायर पोटेंशियल, दैट मींस आई कैन मेक अ बैटरी लाइक दिस, है कि नहीं, ऐसा एक बैटरी बना सकते हैं अपन, राइट। हायर पोटेंशियल ये है ना, तो ये हायर पोटेंशियल है, तो ऐसा बैटरी बनाया, इसका वैल्यू क्या है, E इज इक्वल टू BLV। इसमें भी सेम, ठीक है, तो दिस इज C इज हायर पोटेंशियल, तो अगेन वी कैन मेक अ बैटरी लाइक दिस, E इक्वल टू BLV, दोनों का वैल्यू सेम है, ठीक है। और यहाँ पर और यहाँ पे कोई पोटेंशियल नहीं डेवलप हुआ है BC और AD में, ठीक है, तो दिस इज द सेटअप दैट यू हैव। नाउ दिस इज असिस्टिंग कनेक्शन और अपोजिंग कनेक्शन, अपोजिंग कनेक्शन, नेट EMF कितना आएगा, 0। तो ये भी एक टेक्निक है, ये भी एक तरीका है इसको सोचने का, समझ में आया क्या। ऑब्वियसली रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स से हमको आंसर पता है, ठीक है, बट दिस आल्सो वन मोर वे ऑफ लुकिंग एट इट, कि जो रॉड्स है उनमें EMF डेवलप हो रहा है, ये वाले साइड्स के जो कट कर रहे हैं फील्ड लाइंस को, बट इक्वल ऑपोजिट हो रहा है, इसके वजह से कैंसिल हो गया। एनी क्वेश्चंस एनीवन, सबको समझ में आया क्या, ओके। फ्लक्स चेंज तो नहीं है, इसलिए वैसे भी EMF नहीं था, बट ये थोड़ा हमने इसको कंपेयर कर लिया अपने BLV वाले फॉर्मूला से, तो वी गेट दिस, वोल्टेज डेवलप हो रहा है, EMF डेवलप हो रहा है, तो वी कैन अज्यूम इट टू बी अ बैटरी, है ना। अगर वोल्टेज डेवलप हो रहा है तो वी कैन अज्यूम इट टू बी अ बैटरी, इजंट इट, ओके। चलो ये देखो, इसका नेक्स्ट टाइम तुमको सॉल्व करवाऊंगा। देयर इज अ इनफिनिट वायर कैरिंग करंट I, ओके, एट अ डिस्टेंस A देयर इज अ रॉड AB व्हिच इज मूविंग लाइक दिस। नाउ यू टेल मी कि रॉड AB जो है इज कटिंग द फील्ड लाइंस और नॉट, रॉड AB जो है वो फील्ड लाइन कट कर रहा है क्या, देखो जरा, यहाँ पे करंट I ऐसे जा रहा है कि नहीं, ठीक है, फील्ड लाइन से इनवर्ट्स, तो ऐसे क्रॉस क्रॉस बना दो, तो फील्ड लाइन से ऐसे जो भी B बन रहा है, B या B नॉट जो बनना है बोलो, ठीक है, वो B तो अंदर बना है पेज के, और रॉड ऐसे जा रहा है तो कट करेगा फील्ड लाइन, राइट, इट विल कट, तो आंसर इज यस, इट इज गोइंग टू कट, व्हिच मींस देयर विल बी सम EMF डेवलप्ड। समझ में आएगा, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल कौन, V क्रॉस B, ये हायर पोटेंशियल, तो VA माइनस VB मिलेगा, सही है ना, VA माइनस VB पॉजिटिव मिलने वाला है, करेक्ट, A क्रॉस B। सेकेंडली दे हैव आस्क्ड फाइंड VA माइनस VB एट दिस इंस्टेंट, एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट क्या है, तो कैसे करेंगे, V, B और L, इसको L ले लो भाई, L दिया नहीं था, ये L ले लो, ठीक है, तो BLV का परपेंडिकुलर है दूसरे को, तो हो गया आंसर, इट इज BLV, है ना, ये V नॉट है, और B की वैल्यू क्या होगी, यू टेक एनी पॉइंट ऑन दिस रॉड AB, यहां ले पे, यहां ले, कहीं भी ले ले, यू टेक एनी पॉइंट ऑन दिस रॉड, ठीक है, B का वैल्यू विल बी सेम बिकॉज डिस्टेंस फ्रॉम द वायर इज सेम, ठीक है, एंड दैट वुड बी हाउ मच, μ0 I अपॉन 2 पाई A। समझ में आया क्या, LV नॉट, दैट इज आंसर, चमका की बाउंसर, बिकॉज सी BLV फॉर्मूला ठीक है, बट B वेरी तो नहीं कर रहा रॉड AB से, नहीं वेरी कर रहा है, समझ में आया, और नहीं वेरी कर रहा है तो B इज कांस्टेंट एंड वी कैन डू दिस, देयर इज नो प्रॉब्लम हियर। एनी क्वेश्चंस, समझ में आया कैसे किया, आई रिपीट, L, B और V तीनों परपेंडिकुलर था, डायरेक्टली BLV फॉर्मूला लगा दिया, और B भी कांस्टेंट है थ्रू द रॉड, तो वी कैन ऑलवेज पुट द वैल्यू एज μ0 I upon 2 pi A, दिस इज कमिंग फ्रॉम MEC। समझ में आया क्या B का फॉर्मूला, अच्छा तुमको कौन सा करना है, ये वाला कर लो, थोड़ा इजी देता हूं, ठीक है, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस्ड बिटवीन A एंड B, करो, अपना एक्सपीरियंस ये बोल रहा है कि यहाँ पे लॉन वॉन तो आना चाहिए, है कि नहीं, रॉन्ग फाइल, यही था ना, इसके पहले कोई सम मिस किया क्या हमने,
नहीं ये शॉर्ट करना है ये सॉल्व करना है, इसके बाद ये वाला हो गया राइट। आ जाओ, अब इसमें क्या करेंगे, वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड इज वेरिंग हियर, ठीक है, तो क्या करो x पे जाके dx का एक छोटा पार्ट ले लिया हमने, ओके dx, दिस इज dx है ना, ये जो पार्ट है इसको dx बोल रहे हैं हम लोग, ओके। इफ यू लुक एट दिस dx एलिमेंट, सिर्फ और सिर्फ ये dx एलिमेंट को देखो, और यहाँ पे तुम्हारा वायर है एट अ डिस्टेंस x कैरिंग करंट I, तो व्हाट इज द dE डेवलप यहाँ पे, जो dv या dE जो बोलना है बोलो, तो dv कितना आ गया यहाँ पे, b l v naught, because velocity is same for the entire rod, isn't it? और b की वैल्यू कितनी आएगी, म्यू नॉट बाय 2 पाई लॉग म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई x v naught dx, this is dv का वैल्यू। if you want delta v you integrate dv, correct, from what is the limits, a to a plus l, a to a plus l, okay, mu naught I upon 2 pi v naught 1 upon x dx, and you know what is the answer here, right? क्या आएगा, mu naught I upon 2 pi v naught, ये तो कांस्टेंट है, ये integration of 1 upon x dx is ln x, and then you put the limits, you will get ln a plus l upon हायर पोटेंशियल कौन है भाई, v क्रॉस b है ना, b is inside the page here, okay, तो v क्रॉस b a, this is actually va minus vb है ना, समझ आया सबको। नेक्स्ट सम देखो, नेक्स्ट सम में क्या दिया कि इट इज मूविंग लाइक दिस, v naught से there is a loop abcd which is moving towards right with velocity v naught, this is a square loop, side is given as l to us, साइड l दिया है अपने को, और जो वायर है इसका डिस्टेंस a है फ्रॉम द लूप। एट दिस इंस्टेंट दे आर आस्किंग अस कि व्हाट इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड। नाउ यू शुड अंडरस्टैंड कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे आएगा इसमें, पेज के अंदर लाइक दिस है ना, एंड ये जो ए बी सी और ए डी है वहां पे तो कोई ईएमएफ नहीं आने वाला, इजंट इट, तो यहाँ पे कोई ईएमएफ नहीं है बी सी और डी ए में, है ना। ए बी में हायर पोटेंशियल कौन है, वी क्रॉस बी, दिस इज हायर पोटेंशियल, तो दिस इज अ वोल्टेज डेवलप्ड हियर, एंड सेम गोज फॉर सी डी में भी हायर पोटेंशियल ये रहेगा, ये इसको वोल्टेज को तुम V1 बोल दो, इसको V2 बोलो, ओके, एंड वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड दिस वैल्यू ना, हमने निकाला था ये वैल्यू, क्या आया था इसका वैल्यू, V1 का वैल्यू क्या आएगा, है ना, B म्यू नॉट I, पिछले सम से ले रहे हैं हम लोग, है ना, ये वाला सम दे रहे हैं, देखो ये वाला सम यहां से ले रहे हैं, है ना, क्या आएगा, म्यू नॉट I 2 पाई a l v नॉट, एंड v2 का वैल्यू क्या होगा, म्यू नॉट I l v नॉट अपॉन 2 पाई, डिस्टेंस विल चेंज, इट इज a प्लस l, करेक्ट, एंड बोथ आर असिस्टिंग ऑपोजिंग, तो योर डेल्टा v will be v1 minus v2, and that will be mu naught I l v naught upon 2 pi 1 upon a minus 1 upon a plus l, जो भी इससे आंसर आएगा दैट्स योर आंसर। समझ में आया क्या, इजी है, ओके। हाउ अबाउट दिस सिनेरियो जहां पे द सेम क्वेश्चन इज देयर बट इट इज गोइंग अपवर्ड्स, क्या आएगा, यू नो दिस आंसर, और ये आंसर इक्वल आने वाला है, देखो ए बी में ए बी एंड सी डी में देयर इज नो ईएमएफ, यहां पर जो ईएमएफ आएगा वी क्रॉस बी, दिस इट विल बी लाइक दिस, और यहां पे भी सेम, एंड यू नो दिस वोल्टेज एंड दिस वोल्टेज विल बी सेम बिकॉज़ द वेरिएशन ऑफ फील्ड इज द सेम मैनर, राइट। हम लोग ये वाला क्वेश्चन यूज कर रहे हैं, ये वाला यूज कर रहे हैं जो एलएन वाला आया था आंसर अभी, ये वाला, दोनों ही रॉड के लिए ए बी और BC दोनों ही रॉड के लिए आंसर सेम आने वाला, राइट, ओके, तो V और V आएगा जो आंसर हमने पहले निकाला, तो डेल्टा V विल बी 0, तो नेट ईएमएफ क्या आने वाला है, 0। दिस इज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट, यू कैन लुक एट द फ्लक्स के पर्सपेक्टिव से भी, सी फ्लक्स के पर्सपेक्टिव से मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, लेट्स ऑब्वियसली इट इज डिक्रीजिंग एज यू गो अवे, राइट, मतलब डिक्रीज इज सेम, लेकिन यहाँ पे अगर हमें 10 है तो यहाँ पे 9, यहाँ पे 8, राइट, तो इफ यू लुक एट द लूप, वो लूप को हम ऐसे मूव कर रहे हैं, तो जो फ्लक्स यहाँ पे है वही फ्लक्स यहाँ पे भी होगा, बिकॉज वेरिएशन तो सेम है फील्ड लाइंस का,
तो आई एबल टू अंडरस्टैंड दिस. तो अगर इधर अगर हम बोलते हैं कि 10 लाइंस पास हो रहे हैं तो इधर भी 10 ही होने चाहिए. समझा ना? देयर इज नो वेरिएशन, मतलब एज द लूप इज गोइंग लाइक दिस अपवर्ड्स, ठीक है, देयर इज नो वेरिएशन इन द फ्लक्स का वैल्यू. तो उसको फ्लक्स के तरीके से भी देख सकते हो. समझा? अगर इसको ऐसे मूव करते हैं तो फ्लक्स वेरी कर जाता है, बिकॉज अभी यहाँ पे 10 है तो नंबर ऑफ लाइंस आर डिक्रीजिंग, राइट? बिकॉज यहाँ पे ऐसे ले जा रहे हो तो नंबर ऑफ लाइंस सब जगह, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 9 है और यहाँ पे भी 80 है, राइट? तो ऐसे ले जाने में कोई फ्लक्स का चेंज नहीं है. तो अदर व्यू ऑफ लुकिंग एट इट इज नो फ्लक्स चेंज, उससे भी देख सकते हो तुम, नो फ्लक्स चेंज. तो ये अलग तरीका है. दोनों तरीके से आंसर करो, आंसर वही आने वाला है. समझ में आया क्या? फिर नेक्स्ट सम नहीं होगा. नेट ईएमएफ 0 है, ठीक है. इंडिविजुअल रॉड्स में हो रहा है बट ओवरऑल लूप में देखा जाए तो 0 कैंसिल हो गया, ठीक है, बिकॉज लूप के थ्रू फ्लक्स भी चेंज नहीं हो रहा. वैसे भी हम इसको पढ़ सकते हैं. और या तो ऐसे करो, दोनों जो ईएमएफ डेवलप हो रहे हैं दोनों क्या है, अपोजिंग कनेक्शन है और वैल्यू सेम है तो कैंसिल हो जाएगा. समझ में आया? Look at this क्वेश्चन. तो ये वही क्वेश्चन हमने एग्जांपल में सॉल्व किया था व्हेन वी आर लुकिंग एट डायरेक्शन, ओके. एंड देयर सेड दिस स्क्वायर लूप, इट्स स्क्वायर लूप. साइड दिया है हमको ए, ये साइड ए दिया है अपने को. रेजिस्टेंस इसका स्मॉल आर देकर रखा हुआ है और एट t इक्वल टू 0, दिस इज द पोजीशन एट t इक्वल टू 0. एट t इक्वल टू, इट इज जस्ट ऑन द बॉर्डर, या जस्ट अभी एंटर करने वाला है ये मैग्नेटिक फील्ड रीजन में. दैट्स कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड एज सम b. ओके, D इज मोर देन A, मतलब ये बड़ा है थोड़ा सा, तो मतलब देयर विल बी 3 स्टेजेस. ये इसमें जा रहा है तब फ्लक्स चेंज होगा, जब अंदर है तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा, और जब बाहर जा रहा है तो फ्लक्स चेंज होगा. तो यहाँ पे यू शुड नो दैट कि फ्लक्स चेंज या करंट कब आएगा, ओनली व्हेन इट इज गोइंग इनसाइड और व्हेन इट इज कमिंग आउटसाइड. ओके, जब आस्क्ड अस डू इसका ग्राफ ऑफ phi वर्सेस t एंड I वर्सेस, आई थिंक यू कैन डू दिस ग्राफ. तुम कर सकते हो ना, ठीक है. एट टाइम t पे कैन यू फाइंड फ्लक्स, कि एक मैं करा दूं? चलो एक करा देता हूं मैं, ठीक है. तो आफ्टर टाइम t या एट टाइम t यू कैन से, ओके, द डायग्राम विल लुक लाइक दिस, है ना, ठीक है. और ये डिस्टेंस को x ले लो, थोड़ा सा जो लूप है वो फील्ड के अंदर जा रहा है, इसको मैंने x ले लिया. एंड यू नो व्हाट इज द x का वैल्यू? इट विल बी v0 into t, डिस्टेंस is speed into time, ठीक है. एंड इफ यू लुक एट द फ्लक्स का वैल्यू, व्हाट विल बी फ्लक्स? इट इज b a will be what? यहाँ पे जो साइड a दिया है और ax को लिख सकता हूँ मैं a v0 t. मिल गया फ्लक्स. EMF इंड्यूस्ड माइनस d∅dt, तो माइनस b a v0. चमका है कि नहीं? EMF के लिए क्या माइनस d∅dt कर रहे हैं हम लोग, ठीक है. करंट के लिए क्या करोगे? E/R. चमका ना, काफी आसान है, ओके. बट ग्राफ करते हैं थोड़ा ढंग से, इसको ऊपर लेते. लेट्स द ग्राफ पार्ट. आई होप यू गॉट दिस, ठीक है, ओके. तो ग्राफ आप देख लो. तो ग्राफ में वी हैव टू डू, क्या पूछा से, phi t और i t, ठीक है. phi t i t कर लेते हैं. तो there is one stage where it is going inside. Let's say इतने टाइम तक अंदर जा रहा है, इतने टाइम तक अंदर है और फिर बाहर आ रहा है, ओके. तो दिस इज phi t ग्राफ एंड दिस इज लेट्स से i t और e t से सेम ही है, मतलब, ठीक है. तो i t और e t आई थिंक सेम ग्राफ जाएगा, बस खाली क्या है कि i की वैल्यू इज लेस, है ना. तो इफ यू वांट आई जस्ट राइट इट, इसको माइनस a v0, ओके. आ जाओ, ठीक है. तो व्हेन इट इज गोइंग इनसाइड फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, इजंट इट? एंड इट इज अ लीनियर फंक्शन, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव, तो ऐसे ग्राफ आना चाहिए, है ना, ठीक है. और टाइम कितना लगेगा भाई? टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस ट्रैवल इज a, तो इट विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड a/v0, ये 0 से लेके t, है ना. एंड देन फ्लक्स विल बी कांस्टेंट, जितना है उतना ही रहेगा फ्लक्स, है ना. व्हाट इज द मैक्सिमम फ्लक्स का वैल्यू? ये वैल्यू कितना है? ba² ना, ba² होगा, है कि नहीं? अरे b इंटू ए ना, ba² होगा, ठीक है, ओके. अब जब बाहर आ रहा है तो इज रिड्यूसिंग, ठीक है ना. इट विल रिड्यूस एंड इवेंचुअली बिकम 0.
This time should be how much? ये वाला है. Which time? This one. D by V naught. D by V naught. D by V naught. D by V naught. A plus D by V naught लेना चाहिए क्या? नहीं वो आगे वाला ना. हाँ वो आगे वाला. कि D by V naught? D by V naught. आगे वाला A plus D by V naught. हाँ आगे वाला D plus A plus D by V naught. देखो ये अगर तुम देखो ध्यान से, ये एज A मान लो इसको, तो यहाँ पे आएगा एज, तो डिस्टेंस लगानी हाउ मच? D ओनली, है ना? यहाँ से यहाँ तक का पूरा टाइम लेना पड़ेगा, बिकॉज एक्स एक्सिस है ना ये, Constant D by V naught. ठीक है? इट हैज टू बी D by V naught. D by V naught ओनली. तो चमका कि बाउंसर चला गया? Next one. A plus D by V naught. बाउंसर गया भाई, लोगों को बाउंसर गया ना. सुनो, ठीक है, एक्स एक्सिस पे तुम ऐसे लिखते हो क्या? देखो, अगर मुझे किसी ने ऐसा पूछा कि यहां से यहां का टाइम क्या है, तो देन वी कैन से कि यहाँ देखो, यहाँ पर यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस हो तुम, तो इट विल बी d माइनस ए अपॉन वी. बट अगर हम जो एक्स एक्सिस पे लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, मतलब 0 1 2 टोटल टाइम लिखते हैं ना हम लोग, ठीक है? टोटल टाइम ना, वी डोंट हैव टाइम का डिफरेंस, राइट? तो हमको टोटल टाइम लिखना है, मतलब शुरुआत से लेके अभी तक. ओके, तो इसलिए मैंने बोला कि शुरुआत से लेके मतलब यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर, t इक्वल टू 0 से लेके अभी तक का हाल, ठीक है? तो t इक्वल टू 0 मतलब यहाँ पे था वो, और अभी मतलब जस्ट बाहर निकलने वाला है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस इज हाउ मच? d, और वेलोसिटी इज, तो d by v naught इज करेक्ट. समझा? जब बाहर निकल जाएगा, सी इट गोज आउट लाइक दिस, ठीक है? तो तब a प्लस डी होगा, तो यहाँ पे इट विल बी a प्लस डी अपॉन v naught. समझ में आया टाइमलाइंस? Any questions here? Now how about current? Current will be clockwise, anti-clockwise when it is going inside. Anti-clockwise. कैसे करेगा भाई? Clockwise, anti-clockwise. जब वो अंदर जा रहा है, ठीक है, तो the flux is increasing downwards, so it will increase, तो anti-clockwise है ना, ठीक है? ओके, या तुम इसको ऐसे भी लोग करते हैं कि E is minus d phi by dt. Okay, isn't it? And E is actually IR is minus d phi by dt. Now d phi by dt represents slope of this graph, phi t graph. So we can say that I will be, ये E के लिए भी हम बोल सकते हैं, is negative of slope by R. Slope किसका? phi t का. समझ में आया क्या? Which means अगर यहाँ पे ये पॉजिटिव स्लोप है ना, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, नेगेटिव वैल्यू आना चाहिए, राइट? तो नेगेटिव वैल्यू आएगा, और क्या यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट है क्या? कांस्टेंट है, राइट? है ना, वैल्यू तो कांस्टेंट आई की, तो नेगेटिव में क्या वैल्यू रहेगा, तो ऐसे बनाएंगे, ऐसे, और यहाँ पे कुछ भी नहीं आना चाहिए, ठीक है? और ऐसे. समझ में आएगा? जब स्लोप नेगेटिव तो यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव जाएगी, यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव, यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी. व्हाट इज द वैल्यू वी गॉट? इट इज b a v naught अपॉन स्मॉल r. सेम वैल्यू विल गो ऊपर ऑल्सो, ठीक है? यहाँ पे भी b a v naught अपॉन स्मॉल r. डिड यू गेट दिस कॉन्सेप्ट? ग्राफ बनाने आएगा तुमको? एनी क्वेश्चंस, एनीवन? श्योर? व्हाट इज द लॉजिक यहाँ पे? कभी कभी ग्राफ से ग्राफ पूछ रहे थे, यहाँ पे स्लोप, फ्लक्स में स्लोप पॉजिटिव, तो ईएमएफ में और उसका उल्टा, मतलब यहाँ पे ये फॉर्मूला को ध्यान में रखना है, ठीक है? यहाँ यू कैन राइट दिस फॉर ईएमएफ माइनस ऑफ स्लोप आई टी. रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट, ओके? थोड़ा इसको ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है? दिस फॉर आई. अब एक और करते हैं, ये वाला तुम ट्राई करो. सेम क्वेश्चन, गिव मी फाई टी ई टी आई टी, जो भी ग्राफ चाहिए. यहाँ पे ट्राइंगल लिया है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है? साइड ए, ये भी ए, ये भी ए, वी नॉट से जा रहा है अंदर. मैग्नेटिक फील्ड को तुम बी ले लो, ओके? डी डिस्टेंस है, डी इज मोर देन ए ले लो, ओके? गिव मी दिस ग्राफ, ट्राई. सेम क्वेश्चन, but the shape is changed. Try this. If you want, I'll just show that sum again. पहले ये लिख लो क्वेश्चन, फिर वो सम वापस लिख लो. If you have questions, let me know. Look at this. We are looking for flux and current. चलो कर लेते हैं. आ जाओ. तो after some time t, what will happen? This will enter at some distance x, isn't it?
दिस इज एक्स, दिस हैज टू बी आल्सो एक्स, क्योंकि अपना आइसोसेलेस ट्राइंगल है, सिंपल सा फंडा लिया हमने, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया इसको. ओके, तो फ्लक्स एट टी, फ्लक्स विल बी गिवन एज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. So half into x is actually v naught square, v naught square t square, isn't it? ठीक है, into b भी लिखना पड़ेगा, सॉरी. ठीक है, तो into b भी आ जाएगा. सही है, तो 5 मिल गया अपने को. यहाँ पर इसको संभाल के रखते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वी वांट इज EMF. इट इज माइनस d5 by dt, that will be b v naught t negative v naught square. Okay, and current will be minus b naught square by r. चलेगा. अब ग्राफ करना है इसका. अगर समझ लो फ्लक्स का ग्राफ बना रहे, EMF करंट, देखो भाई कैसे आएगा. स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3. ओके, अब यहां पर क्या हो रहा है, क्वाड्रेटिक, राइट है ना, और y इज इक्वल टू ax स्क्वायर वाला फंडा है ना. तो ये पॉजिटिव है, राइट, ये पॉजिटिव है, राइट. It will go like this, है ना, and then the flux is constant, then decreases. कैसा आएगा बोलो? y equal to minus x square, नहीं, हाँ, वैसा है. सेम उसका ऐसा? मिरर नहीं मिरर में वैसा नहीं. ऐसा नहीं है. You are saying it has to be like this. ओ नहीं, हाँ हाँ वैसे नहीं वैसे ऐसे हुआ क्या ये? नहीं वैसे माइनस एक्स स्क्वायर का था. तो जब बाहर निकल रहा है वो, तो क्या होगा, देखो जब बाहर निकल रहा है, अंडरस्टैंड, तो समझते हैं इसको. देखो जब बाहर निकल रहा है तो फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी. देखो ये कॉमन मिस्टेक है जो लोग कर देते हैं. दिस इज द, ऐसे हो रहा है, ये एरिया ऐसे बाहर निकल रहा है, राइट. ओके, नाउ यू टेल मी फ्लक्स का वैल्यू इन दिस केस क्या रहेगा. इट विल बी एट दिस मोमेंट, इट विल बी एरिया माइनस दिस, इजंट इट. ये वाला एरिया कैसे निकालेगा तू. ठीक है, ये तो हाफ एक्स स्क्वायर, और ये वाला एरिया फ्लक्स तो इससे निकालेगा कि इससे निकालेगा. फ्लक्स विल बी b इनटू दिस एरिया, राइट, दिस एरिया, इजंट इट. समझ में आएगा. तो इट विल बी टोटल एरिया विच इज हाफ a स्क्वायर माइनस हाफ एक्स स्क्वायर, राइट है ना. एक्स स्क्वायर का वैल्यू मतलब जो भी तुम्हारा v नॉट स्क्वायर t स्क्वायर. अब बताओ t का वैल्यू नेगेटिव है पॉजिटिव है. तो अब ऐसा पैराबोला आएगा कि वैसा पैराबोला आएगा. समझा तुमको. तो योर तुम लोग डायरेक्टली इसको ही यहाँ पे लगा दे रहे हो, वैसा है क्या ये. नाउ द फ्लक्स विल बी डिसाइडेड ऑन दिस एरिया. ये वाला एरिया फ्लक्स करेगा, राइट. जब बाहर निकल रहा है तो दिस द फ्लक्स, तो इट हैज टू बी लाइक दिस व्हाइल गोइंग आउट. तो व्हेन इट इज लूप is leaving field, they are leaving that area, so this is the flux. चमका कैसा है ये. नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट. अब तो क्या है ये नेगेटिव, कैसा आएगा तो ऐसे, एंड देन ऐसे नहीं आएगा, ऐसा वापस ऊपर से पॉजिटिव एक्स एक्सिस में डिक्रीज. you will like this. हाँ, कैसा आएगा तो ऐसे ऐसे, ऐसा आएगा क्या. बट ऊपर आर यू श्योर. पॉजिटिव एक्सिस. पहले तो पॉजिटिव एक्सिस में आएगा, राइट. ऐसे 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 आएगा.
X-ray something. माइनस डी फाइव बाई डी देखो उसका स्लोप देख सकते हैं। हाँ उसका वैसे स्लोप एक बार उसका स्लोप पर negative- कैसा आएगा पॉजिटिव और राइट है ना ये राइट है कि रॉन्ग है Positive नहीं है। स्लो पॉजिटिव होना चाहिए ना बिकॉज़ माइनस डी फाइव बाई हाँ, डी कैंसिल स्लोप पॉजिटिव रहना चाहिए। हाँ पॉजिटिव वो देखो उसको अगर उसका स्लोप लिया और उसको नेगेटिव किया तो तो positive ऐसे आएगा। कैसे पॉजिटिव वैसे स्ट्रेट ऐसे ऐसे बनाओ ये हाँ क्या ऐसे नहीं स्लोप पॉजिटिव स्लो पॉजिटिव ऐसे फिर मैं ये में फिर मैक्सिमम इट कम्स आउट ऐसा नहीं होना चाहिए। D5/dt माइनस डी फाइव बाई डी स्लो पॉजिटिव रहेगा पर वो नीचे से माइनस ऐसा है। करेक्ट है पर वो नीचे रहेगा नीचे वाले quadrant में। नीचे वाले quadrant में। ये कॉर्नर तो ऊपर ही आना चाहिए देखो यहाँ पे स्लोप मैक्सिमम है ना बराबर तो है जैसे जैसे स्लोप कम हो रहा है ना स्लोप बढ़ रहा है कि कम हो रहा है तो बढ़ रहा है कि कम हो रहा Slope बढ़ रहा है बराबर तो है Slope बढ़ रहा है। करेक्ट ग्राफ है आई थिंक दिस ग्राफ इज करेक्ट फ्लक्स करंट मैक्सिमम ठीक है करेक्ट ओनली सही है ना स्लोप इज बट नेगेटिव यहाँ पे नहीं पॉजिटिव तो पॉजिटिव उल्टा होना चाहिए क्या मुझे लग रहा है क्या ग्राफ ऐसा होना चाहिए पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग पहला वाला तो नहीं, नेगेटिव हो जाएगा ना। पहला तो नेगेटिव ही है तो नेगेटिव साइन आएगा। पहला तो नेगेटिव D5 माइनस D5 ये का स्लोप तो नेगेटिव ही है क्यों देखो तुमने स्लोप तो पॉजिटिव बनाया ना यहाँ पे हाँ तो फिर वो Positive. नेगेटिव बट माइनस डी फाइव बाई डी माइनस D5 तो ऐसा तो ये सही है ओ सॉरी ये सही है सेम उसके लिए भी वैल्यू हैज टू गो मैक्सिमम ना मतलब ये नेगेटिव में मैक्सिमम होना चाहिए क्या बोल रहे हो पॉजिटिव में मतलब 90 बराबर तो है सही लग रहा है मुझे है ना सी अंडरस्टैंड इफ यू कैलकुलेट दिस स्लोप ये ऐसे और ये ऐसे राइट और ये ऐसे ठीक है तो वैल्यू वाइज और वो पॉजिटिव इंक्रीजिंग पॉजिटिव डिक्रीजिंग ऊपर क्यों आ रहा है एक्सिस के दिस इज मोर राइट तो tan theta is decreasing and theta is negative में नो इट शुड बी slope should be decreasing right slope decreasing the value will should decreasing स्लोप इंक्रीज हो रहा है सर इंफिनिटी बन रहा है हाँ इन्फिनिटी बन रहा है ना इंफिनिटी बन रहा है तो बढ़ रहा है ना increase बराबर ही एक्सिस के मुझे तो बराबर ही लग रहा है ये तो सही लग रहा है मुझे तो एक्सिस के ऊपर के साथ सही लग रहा है मुझे तो ऊपर के साथ डायरेक्शन तो उल्टा ही होगा ना डायरेक्शन तो उल्टा ही होने वाला है अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव सही लग रहा है मुझे तो फॉर्मूला के हिसाब से वो नेगेटिव होगा डिक्रीज हो रहा है बी नेगेटिव हो रहा आई है डिक्रीज नहीं हो रहा है बी नेगेटिव हो रहा नहीं है बी नॉट है तो पॉजिटिव है बी तो नेगेटिव बन नहीं सकता तो ऊपर बट अगर फ्लक्स बाहर निकल रहा है फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो आई भी डिक्रीज होना चाहिए ना रेट ऑफ चेंज ऑफ है ना इस रेट सर एक सेकंड वो ऊपर जा सर सर सही लग रहा है मुझे तो आई थिंक इट्स करेक्ट यू कैन वी कैन इसको वापस देखो फिर देखते हैं है ना आई थिंक इट्स करेक्ट एंड यू कैन ट्राई फॉर दिस आल्सो ठीक है घर पे ट्राई करो वी कैन ट्राई दिस फॉर सर्कल एंड एलिप्स ए और बी मेजर वाइज एंड सेम चीज कर रहा है तुमको सर्कल और एलिप्स के लिए ठीक है इसमें क्वेश्चन पूछते हैं कि रेट के बारे में क्वेश्चन है कब कब कांस्टेंट कब जीरो वो सब पूछते हैं लोग ठीक है तो ये ट्राई करना फॉर सर्कल एंड फॉर एलिप्स ओके यू नो हाउ टू गेट द एरिया राइट है ना at time t what will happen
ऐसा कुछ रहेगा ना, तो ये एरिया निकालने तुमको आता ही है, ठीक है। सेमी सर्कल क्यों होगा, एट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लो ना, और सेम एलिप्स का हमको तो आता है एरिया निकालने, ठीक है। तो वी नो द प्रॉपर्टीज, ट्राई करो, ठीक है। इट्स नॉट वेरी टफ, इट्स नॉट वेरी टफ, यू नो हाउ टू गेट दिस एरिया, राइट, है ना, कर सकते हो, तो ट्राई करो, नहीं आया तो मैं तो हुई, बट आई वांट यू गाइस टू ट्राई। अभी अभी एलिप्स का प्रॉपर्टी भी किया आपने इन ग्रेविटेशन, राइट, थोड़ा आइडिया है अपने को, तो एलिप्स और सर्कल हम लोग कर सकते हैं, है ना, कोशिश करो, बात करते हैं, 1 सेकंड। जस्ट 1 सेकंड, विल गो फॉर रियल प्रॉब्लम इसके बाद। ठीक है, look at this real problem. Okay, we have done similar problem in MEC also, right? ठीक है, तो we have these two conducting rails. अभी फिलहाल के लिए इसका रेजिस्टेंस 0 है, तो जरा कंडक्टिंग रेल्स लिख लेते हैं। कंडक्टिंग रेल्स, कंडक्टिंग रेल्स है भाई। एक रॉड दिया आपने को, लेट्स कॉल दिस रॉड एज रॉड AB। इसका मास m ले लो, लेंथ L ले लो, ठीक है, और रेजिस्टेंस स्मॉल r ले लो, स्मॉल r ओम्स, और लेट्स से इज गिवन सम इनिशियल वेलोसिटी v0 एंड फील्ड इज v0 हियर, और यहाँ पे दिस रेल इज आल्सो कनेक्टेड टू रेजिस्टेंस r, ये रेजिस्टेंस r लगा के रखा है यहाँ पर, ओके। व्हाट विल हैपन, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू नोटिस दिस केयरफुली यू विल अंडरस्टैंड कि बिकॉज यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक रॉड इन मोशन है एंड इज कटिंग द फील्ड लाइंस, देयर विल बी ईएमएफ इन AB, एंड दिस ईएमएफ इन AB, ये जो ईएमएफ बन रहा है AB में, ठीक है, इट विल बी नॉट L V0, चमका, बिकॉज ऑल थ्री आर परपेंडिकुलर, L और B सब परपेंडिकुलर है, तो BLV का ईएमएफ बनेगा इसमें, ओके, इनिशियल ईएमएफ। बट यू शुड अंडरस्टैंड कि द मोमेंट दिस हैपेंस, बैटरी कैसे बनेगा इसका, V क्रॉस B, ऊपर की तरफ हायर पोटेंशियल है, तो दिस इज द बैटरी विच इज E इज इक्वल टू BLV, एंड खुद का रेजिस्टेंस भी तो है, तो दैट विल बिहेव लाइक ए इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आई शुड मेक ए इंटरनल रेजिस्टेंस आल्सो, तो आई जस्ट मेक इट वन इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, ठीक है, प्रॉपर सेल बनेगा ये, ठीक है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो वो रेजिस्टेंस बनाते हैं, तो दिस इज योर सर्किट डायग्राम, ये तुम्हारा सर्किट डायग्राम बन जाएगा, करेक्ट। तो ये सर्किट जो है वो ऐसा बिहेव कर रहा है, विच मीन्स देयर बी करंट लाइक दिस, आई फ्लो करेगा, व्हाट इज आई का वैल्यू, BLV अपॉन R, R प्लस R, सही है ना, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन, द मोमेंट दिस हैपेंस देयर इज वन मोर फिनोमेना विच यू नोटिस कि भाई इसमें करंट फ्लो करना चल रहा है, रॉड में भी करंट फ्लो हो रहा है, रॉड में भी जाएगा, और रॉड बिकम्स ए करंट कैरिंग वायर इनटू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इट विल एक्सपीरियंस BIL, है ना, BIL किस तरफ, L क्रॉस B इस तरफ, मतलब ये जो रॉड है जिसको तूने इनिशियल वेलोसिटी V0 दिया था, ठीक है, उस पे फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ मैग्नेटिक, विच इज एक्चुअली BIL, समझ में आया क्या, एंड दैट FB का वैल्यू वी नो इट इज BIL, तो B का वैल्यू B0 है, I की वैल्यू अभी मिली है B0 LV अपॉन R प्लस R L, that will be actually B0 square L square V upon R plus R, चमका, and because of this force what will happen, retardation, समझ में आया क्या, तो velocity will become V after some time, तो velocity change होगा, राइट, है कि नहीं। अगर मुझे चाहिए, if they ask me question like this कि find external force required to keep rod at constant speed, what is the answer, भाई इसको बैलेंस कर दो, है नहीं, तो F external should be equal to how much, FB, which will be how much, B0 square L square V upon R plus R, इतना तुम दे दोगे अगर तो काम हो जाएगा, समझ में आया क्या, एनी क्वेश्चंस, ठीक है। तो दिस कैन बी आस्क्ड, ओके, समटाइम्स दे आस्क व्हाट इज द पावर लॉस बाय द एक्सटर्नल, तो वो भी निकालते, पावर लॉस पूछा अगर, ठीक है, तो विल बी FV लगा के आंसर आया था,
समझ में आया ना? पावर लॉस भी पूछ सकते हैं. एनी क्वेश्चंस? एफ का वैल्यू पता है, वी का वैल्यू पता है, तो हमको पावर लॉस ही मिल जाएगा. समझ में आया क्या? तो रियल प्रॉब्लम में ऐसे बहुत कॉमन क्वेश्चंस है. FV की वजह से कोई मोशन नहीं होता है. सॉरी, FV की वजह से कोई मोशन नहीं होता. एफ वी की वजह से रिटार्डेशन हो रहा है ना. तो वेलोसिटी तुम्हारा अगर समझो 10 है तो दैट विल बिकम 9, 8, 7, it will reduce, isn't it? It will reduce because of this FV here. And in fact that should happen also. तुम अगर नोटिस करो कि लेंस लॉ फॉलो हो रहा है एक्चुअली. यू अंडरस्टैंड दिस इज द लूप. और लूप का क्या हो रहा है? जब तुम उसको इधर ले जा रहे हो तो लूप के एरिया बढ़ रहा है, तो फ्लक्स इज इंक्रीजिंग इनवर्ड्स. तो जो भी होगा यहाँ पे दैट विल ट्राई टू अपोज दिस. तो करंट इंड्यूस ऐसा हो रहा है कि तुमको एफबी इस तरफ मिलेगा, सो दैट इट्स ट्राइंग टू रिड्यूस द लेंथ. समझ में आ रहा है क्या? द करंट इज इंड्यूस इन सच अ वे दैट कि यू आर गेटिंग अ फोर्स व्हिच इज ट्राइंग टू अपोज व्हाटएवर इंक्रीज इन फ्लक्स इज हैपनिंग. तो लेंस लॉ फॉलो हो रहा है यहाँ पर. चमका की बाउंसर समझ आएगा क्या हो रहा है? एफबी का रोल क्या है यहाँ पर. ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है. सेम है, लेंथ एल, रॉड का लेंथ एल ले लो, मास एम ले लो, रेजिस्टेंस स्मॉल आर ले लो, कैपेसिटर लगा दिया मैंने, इसका रेजिस्टर. ठीक है, और यहाँ पे वी नॉट वेलोसिटी दे दिया इसको, फील्ड वी नॉट है. यू हैव टू फाइंड द सेम थिंग. ठीक है, ओके, तुम कर सकते हो. ये सम कर लोगे, मैं एक सम और कराने वाला हूँ आगे, तो वहां से तुमको इसका भी आइडिया आ जाएगा. ओके, इट विल बी एक्चुअली CR सर्किट हो जाएगा ये. You can find Q as a function of time, C as a function of V as a function of time, सब निकाल सकते हो. It will be CR circuit like this. ये स्मॉल आर हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ दिस गाय प्लस देयर अ बैटरी लाइक दिस, है ना? तो तुम अटेम्प्ट करो इसको. ठीक है, you can give me Q as a function of time, you can give me velocity as a function of time. ठीक है ना? ठीक है, सब कुछ निकाल सकते हो तुम, है ना? करो, देखो क्या आता है. ओके, we'll discuss this next class में. तो कैपेसिटर इनिशियली चार्ज रहेगी. नहीं, अनचार्ज कैपेसिटर. ओके, at t equals 0 कैपेसिटर इज अनचार्ज. लुक एट दिस. अभी मैं इसमें V ऐसा बचा टाइम निकाल कर दिखाता हूं तुमको. सेम क्वेश्चन. ओके, रेजिस्टेंस R, रॉड ऑफ लेंथ L, मास M, इंटरनल रेजिस्टेंस ये तो ले लो, नहीं लिया तो मत भी ले लो. सो नहीं लेते, थोड़ा सा कैलकुलेशन सिंपल करते हैं. ठीक है, देयर इज नो इंटरनल रेजिस्टेंस. इनिशियल वेलोसिटी V नॉट दिया हुआ है. ओके, अब पूछा है फाइंड V एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. तो यू नो दैट if you look at this rod, इसमें FB will act like this. अभी आपने ने किया, राइट? And then FB का वैल्यू is BIL and that will be, what is I का वैल्यू? सर्किट becomes the SA. I निकालने के लिए सर्किट डायग्राम बनाना पड़ेगा. सर्किट तो ये हो जाएगा BLV, नो इंटरनल रेजिस्टेंस, ये R है, तो करंट जो आएगा I, it is simply BLV upon R. करेक्ट? ओके, तो FB जो मिल रहा है, फोर्स जो मिल रहा है तुमको, it will be B square L square V upon R. चमका? Now this force is giving you negative acceleration. Correct? Okay. So get B square L square V upon R is equal to minus MA. सही है? Okay. तो A will be equal to B square L square V upon MR. Negative. Now you can make it simple by इसको K ले लो एक, है ना? कैलकुलेशन में थोड़ा गंदा दिख रहा है तो इसको K ले लेते हैं, माइनस के वी कर देते हैं ना. तो A एज अ फंक्शन ऑफ V तो है हमारे पास, है कि नहीं? अब ये तो काइनेमेटिक्स का प्रॉब्लम हो गया. ये तुमको मिल गया ना, A एज अ फंक्शन ऑफ V. क्या करोगे? इसको लिखा dV by dt माइनस के वी, है ना? Therefore I can say that dV upon V is equal to minus K dt. Integrate. At t equal to 0, velocity is V naught. At t equal to some time t, velocity is some V. ठीक है, V ऐसा कुछ टाइम चाहिए भाई. 5 hours के बाद क्या बोल रहे हो? ठीक है, 0 कहाँ से आ गया? ठीक है, चमका क्या? ओके, तो यार ln, है ना, V upon V naught is equal to minus KT. तो you will get, ये वहां गया तो क्या मिलेगा? V is equal to V naught e raised to minus KT. If you substitute V का वैल्यू, सॉरी K का वैल्यू, तो it was minus B square L square, V तो नहीं ना, अपॉन MR. तो ये है तुम्हारा आंसर. एंड इफ यू ड्रॉ द ग्राफ, तो एक्सपोनेंशियल डिक्रीज, है ना? चमका? दैट इज आंसर.
है कि नहीं? इजी है ना? सबको समझ में आया कैसे किया हमने? थोड़ा अच्छा देखो, थोड़ा इसको और कॉम्प्लिकेट करना है. क्या करूंगा मैं? एक एक्सटर्नल फोर्स F0 डाल दिया. समझ में आया क्या? सेम क्वेश्चन, एवरीथिंग इज सेम. If I put some mass m, length L, internal resistance नहीं लेते. Okay, I'm saying कि on this rod there is an external force F0 acting which is constant. Find V as a function of time. What will you write? You'll write है ना F0 minus F is equal to ma लिख दोगे, है ना? ठीक है. And that will be F0 minus F की वैल्यू क्या है? BIL. तो B L square V upon R. अरे वही सेम पीछे से उठा रहा हूं मैं. ठीक है. इज इक्वल टू एम ए. अभी क्या करोगे तुम? सेम फंडा है, मतलब एम से डिवाइड किया, डी बाई टी लिखा और इंटीग्रेट कर लिया, है ना? तो ए को यू सब्स्टिट्यूट डी बाई डी टी एंड जस्ट इंटीग्रेट विल गेट द आंसर. इसमें एंड इंटीग्रेट. जो पहला फंडा यूज किया वही यहाँ पे भी यूज करोगे. इसको ये सब सम्स को थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करना होता है तो क्या कर देंगे? फ्रिक्शन डाल देंगे इसमें. ठीक है. ओके. अभी बोला है कि अभी एंटायर सेटअप इज केप्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन. ये जो पूरा सेटअप है इसको मैंने हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा हुआ है, राइट, है ना? तो इसमें फ्रिक्शन भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपन कि मास mg नीचे ऐड कर रहा है, नॉर्मल डायरेक्शन अप, तो फ्रिक्शन विल बी म्यू एन, इजंट इट? थोड़ा और कॉम्प्लिकेट कर रहा है तो मैं ग्रेविटी घुसा दूं उसमें, ये पूरे को इंक्लाइन प्लेन पे रख दूं, है कि नहीं? तो ये एंटायर सेटअप कैन बिकम गो ऑन एन इंक्लाइन प्लेन एंड दिस वेरी इजी प्रॉब्लम. कुछ बड़ी बात नहीं है. यहाँ पे एक mg लगेगा, यू नो दैट कि यहाँ पे mg का कॉस mg साइन, दैट्स इट. तो जहां पे सिर्फ फोर्स ऐड कर सकते हो बस, और क्या कर सकते हो इसमें? ठीक है. बाकी फंडा तो वही रहने वाला है. इस मेकिंग सेंस? ऐसा सम्स बहुत कॉमन है, बुकलेट में मिल जाएगा तुमको, मॉड्यूल में मिल जाएगा ऐसा सम्स. समझ में आया क्या? तो खाली ध्यान क्या देना है कि तुमको BIL कहां पे लग रहा है, mg का कॉस कंपोनेंट कहां लग रहा है. इट्स FBD बेस्ड प्रॉब्लम, दैट्स इट. इस मेकिंग सेंस? करंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? ये सर्किट डायग्राम बनाना पड़ता है बस. आई निकालने के लिए तुम क्या करोगे कि बोलोगे यहाँ पे R है, यहाँ बैटरी बन रहा है और I विल बी इक्वल टू E अपॉन R, जो भी रेजिस्टेंस रहेगा सर्किट का. समझ में आया क्या? करंट क्यों चाहिए? बिकॉज BIL में I चाहिए होता है. समझा? ठीक है. तो नोट कर लो कि वी कैन कॉम्प्लिकेट इट बाय पुटिंग फ्रिक्शन और वी कैन कीप इट ऑन इंक्लाइन प्लेन. इंक्लाइन प्लेन. ठीक है. तो थोड़ा टाइम पास कर सकते हैं इसमें, और कुछ बड़ी बात नहीं है. ये सब देखो, थोड़ा इंटरेस्टिंग सब, ये सॉल्व करते हैं. लास्ट सम इसमें, कंडक्टिंग रेल, इनफाइनाइट रेल्स, एक तरफ लगा रेजिस्टेंस, एक तरफ लगा कैपेसिटर. इनिशियल वेलोसिटी इज u. इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन एज u और एक कांस्टेंट फोर्स F एक्ट कर रहा है. कांस्टेंट फोर्स है, F इज कांस्टेंट. कांस्टेंट फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट इन द राइट डायरेक्शन. U और F लिखा है मैंने. मास m, लेंथ L दिया है इसका, और फाइंड V एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. ठीक है. करते आ जाओ. क्या करेंगे? देखो यहाँ पे बैटरी बना दे पहले, यहाँ पे कैपेसिटर, यहाँ पे क्या बोलते हैं रेजिस्टर. सर्किट डायग्राम तो बना दिया. ये R, ये C, ठीक है, और ये है E which is equal to BLV. Any questions here? V is velocity at an instant. Okay. जो भी करंट यहां से निकलेगा I, it will split into I1 and I2. Fine. Okay. And it is easier to find I1 because it's simply E upon R, which is BLV upon R. Correct? I1 तो निकालना आसान था, मतलब वोल्टेज पता है और रेजिस्टेंस पता है तो आराम से निकाल सकते हैं, राइट? I2 भी निकाल सकते हो. देखो I2 क्या होगा? I2 इज एक्चुअली इन कैपेसिटर्स, यू नो, चार्ज. तो आई विल राइट इसको I2 को dq by dt, वेयर q इज चार्ज इन कैपेसिटर एट एन इंस्टेंट. ठीक है. एंड q को लिख सकते हैं CV. V क्या है यहाँ पे? वोल्टेज. तो जो वोल्टेज यहाँ पे वही वोल्टेज यहाँ पे, मतलब पैरेलल. तो आई कैन राइट इसको C को CV का V क्या होगा? BLV. ठीक है. तो C कांस्टेंट, B कांस्टेंट, L कांस्टेंट. व्हाट इज d by dt? एक्सेलरेशन. तो वी कैन राइट BLC. A is acceleration.
चमका, समझ में आया क्या? तो नाउ लेट्स पुट इट प्रॉपरली. ओके, तो रॉड के ऊपर दो फोर्सेस, एक फोर्स यहाँ पर F, दूसरा फोर्स यहाँ पर FB, एक्सेलरेशन A ऐसे लिख लो. ठीक है, तो वी कैन से दैट नेट फोर्स विच इज F माइनस FB इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड देन F माइनस FB का वैल्यू क्या है भाई? BIL. उसमें ये वाला I चाहिए रहेगा कि रॉड में तो करंट I टोटल, तो B I को लिखूंगा मैं I1 प्लस I2, बिकॉज I तो वैसे ही मिल जाएगा अपने को, I1 प्लस I2 इंटू L, BIL इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. तो F माइनस B I1 प्लस I2 दैट विल बी BLV अपॉन R प्लस BLC A इज इक्वल टू MA. तो व्हाट यू कैन नोटिस दैट कि यहाँ पे इसको, ये टर्म को वहां ले जाएंगे और ये V यहाँ A एज अ फंक्शन ऑफ V है तुम्हारे पास, है कि नहीं? अब इसको A एज अ फंक्शन ऑफ V है, d by d लिख के सॉल्व कर दो, है ना? कैसे सॉल्व करके? नाउ इट्स काइनेमेटिक्स, राइट? यू लेट इसको dv by dt, दिस फंक्शन ऑफ V, एंड देन V फंक्शन ऑफ V नीचे और dt वहां पर इंटीग्रेट, यू गेट द आंसर. इनिशियल वेलोसिटी को दिया है, फाइनल वेलोसिटी V ले लोगे, आंसर आ जाए, जैसे यहाँ पे किया था हमने. ठीक है, एग्जैक्टली सेम लॉजिक यहाँ पे लगा लो, पीछे जो सम्स में किया भाई. नाउ ऑब्वियसली इंटेशन विल टेक लिटिल टाइम, ओके, बट आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट. एनी क्वेश्चंस एनीवन? समझ में आया कैसे किया मैंने कैपेसिटर के लिए? कैपेसिटर में करंट के निकालने के लिए तरीका क्या है कि CV कर लिया हमने, बिकॉज V वाज नोन टू अस. समझा? एनी क्वेश्चंस? ठीक है, इसमें दो टॉपिक रह गया अभी, रोटेटिंग रॉड भी रह गया है और इंड्यूस EMF भी रह गया, तो ठीक है, विल टेक इट इन द नेक्स्ट क्लास. इनफ फॉर टुडे.